Namo Namah Chhatra. This is Kashyap Tutorials and I am Prabhakar sir. Students, I have already released two videos related first chapter Adi Krishika Prithavanya from entire Sanskrit textbook of 10th standard. It is helpful for both whether it is composite or entire. So now I'm going to release third video related this chapter. Total 4 videos I will make on this. That will help you to understand the paragraph, that will help you to get extra questions, question answers as well as the exercise. So please watch carefully. और आपको कुछ भी डाउट आता है इसमें, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आपको कुछ पूछना है, आप प्लीज़ मैसेज आप डालो तो मैं उसको उस मैसेज पे आपको आंसर दूंगा. राइट. सो कैन वी स्टार्ट थर्ड वीडियो? ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड नंबर. First, I am going to read and then I explain you each and every words and important words. Now see, third paragraph is, listen carefully pronunciation of each and every word. Tada prithu bhupena tadartham dhanuh sajjikrutam. Tada bhumihi stri rupam dhritva tasya puratah prakatita abhavat abadacha. हे राजेंद्र, तब पिता दुःशासक वेनराज राजधर्मस्य पालनं नाकरोत्. तदा मया चोरलुण्ठक भयात् धन धान्य पुष्पफलानि मम उदरे निहितानि. त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृप. यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि. अतः धनुः त्यज खनित्राणि हलान् कुद्दालकान् लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु. So what we have seen in first paragraph, then he was when he became the king at that time, the celestial singers were ready to praise ready to sing his praise. Then he stopped the celestial singers, holy singers. And in second paragraph we have seen that he is actually the real king who is taking care of his subjects. So वो टूर पे निकलता है और वहाँ पे राजा वो प्रजा की जो कंडीशन देखता है तो वो बहुत दुखी होता है. तो वहाँ पे उसके जो पुरोहित होते हैं, राज पुरोहित, उसको सजेस्ट करते हैं कि जो धन है या धान्यादि ये सारे अर्थ में छुपा है, ये पृथ्वी के अंदर ही है, तो आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करो. तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये थर्ड पैराग्राफ में उसका आंसर दिया है. तदा मीन्स देन पृथु भूपेना, दिस इज तृतीया एक वचन फॉर्म. पृथु भूपेना मीन्स बाय किंग पृथु. तदर्थम इज फॉर दैट. तदर्थम फॉर दैट मीन्स किसके लिए, जो धन धान्य आदि ये सारे वस्तु जो अर्थ में छुपा हुआ है उसके लिए. धनु सज्जीकृतम, धनु मीन्स हिज बो, सज्जीकृतम इज प्रिपेयर्ड. ही प्रिपेयर्ड हिज बो for or to get that crops and money. Sajjikrutam. Tada then bhumi stri rupam dhritva tasya puratah prakatita abhavat avadat cha. Then bhumi means the earth, stri rupam dhritva, stri rupam is the woman form, dhritva means dressing or disguised as the woman, dressed as the woman. Tasya purata, tasya means his, purata means in front. So in front of him means राजा के सामने, prakatita abhavat, appeared, arrived means appeared in front of the king in the form of woman and said, abhadat means said, कहा means जो भूमि है, अर्थ है, वो स्त्री के रूप में उसके सामने प्रकट होती है और बोलती है. हे राजेंद्र, ओ किंग, तब पिता दुःशासक, योर फादर मीन्स योर फादर, जो पृथ्वी के जो फादर है वेनराज, दुःशासक मीन्स बैड रूलर, अच्छा रूलर नहीं है, ये विशेषण है उसके फादर का. दुःशासक वेनराज इज द नेम ऑफ हिज फादर. वेनराज एक्चुअली हु वाज द बैड रूलर. राजधर्मस्य पालनम, पालनम मीन्स द ड्यूटी ऑफ किंग, राजा का जो धर्म होता है उसका पालन न अकरोत, वॉज नॉट completing, means your father who was actually the bad ruler was not fulfilling the duty of king. Tada
Then maya, by me, choralunthak bhayat. Choralunthak bhayat means due to fear from the thieves and robbers. Chor means thieves and lunthak means robbers. Bhayat means from fear. Due to fear from the thieves and robbers, dhana, dhanya, pushpa, phalani. Dhana means money, dhanya means crops, pushpa means flowers, phalani means fruits. Mam udare nihitani, I kept hidden inside me. So Earth said, because of fear from the thieves and robbers, I kept hidden dhan, money, crops, fruits and flowers inside me, means inside my stomach. Tvam tu prajahit daksha anupa. Tvam means you, tu means bird, prajahit daksha anupa. Prajahit daksha anupa means particular, means very cautious about the welfare of subjects. You are particular about the welfare of your subjects. Nupa means king. बट आप जो राजा हो, आप अपने प्रजा के भलाई के लिए बहुत सोचते हो, उसमें निपुण हो. यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोसि, यदि तुम इफ यू प्रयत्नेन विथ एफर्ट्स कृषि कार्यम करोसि, इफ यू डू एग्रीकल्चर, इफ यू डू फार्मिंग विथ एफर्ट्स, तर्हि अहम प्रसन्ना भविष्यामि. देन aham prasanna means happy, bhavishyami means I will become happy. If you do agriculture with efforts, then I will be happy. ये कौन कहती है? ये अर्थ कहती है, धरा कहती है किंग पृथु से. अतः hence धनु त्यज, hence you drop the bow, इसलिए धनुष को त्याग दो. hence you drop the bow. खनित्राणि हलान कुद्दालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्य करो. खनित्राणि, खनित्राणि मीन्स डिगिंग टूल्स. डिगिंग खनित्र वर्ड से ही समझते हैं, जो खोदने में, मिट्टी को खोदने में काम आता है. सो ऐसा टूल्स. सो खनित्राणि मीन्स डिगिंग टूल्स, हलान मीन्स प्लॉज, कुद्दालकान मीन्स स्पेड्स, लवित्राणि, लवित्राणि मीन्स सिकल्स. ये 4 टूल्स का नाम बताया, याद रखना, ये जाल चित्रम में आपको हेल्प करेगा. So खनित्राणि means digging tools, halan means plows, kuddalakan means spades, lavitrani means sickles, cha, and haste grihitva, in your hand, grihitva taking in your hand, praja janaihi sa, along with your subjects, कृषि कार्यम करो, you do agriculture. Indirectly वो राजा को कह रहा है कि ये धनुष और बाण से शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि धन पाने का, आपको प्रजा के साथ में खेती करना पड़ेगा. तो ये डिगिंग टूल्स लो और अपने प्रजा के साथ में आप जो है खेती करना स्टार्ट करो. राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस थर्ड पैराग्राफ. नाउ सी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. तदर्थम. तदर्थम इज एक्चुअली समास वर्ड. तस्मै इति. इट इज तस्मै इति. इट इज चतुर्थी तत्पुरुष समास बिकॉज अर्थम इज अटैच्ड विद द प्रोनाउन वर्ड, दैट इज तद. तो तस्मै इति चतुर्थी तत्पुरुष समास. सज्जीकृतम. इट इज च्वी प्रत्यय. इट इज कॉल्ड च्वी प्रत्यय, जो सजाने से बना हुआ है. एक्चुअली दिस मेड बाय द नाउन और विशेषण. सो सज्जीकृतम. धृत्वा. इट इज त्वांतव्य. देन न अकरोत. दिस इज संधि वर्ड. न अधिक अकरोत. नेक्स्ट चोरलुंठक भयात. दिस समास वर्ड. सो सी वर्ड चोराहा च लुंठकाहा च. अगर मैं फर्स्ट 2 वर्ड लूँ तो इट इज इतरेतर द्वंद्व समास. अगर मैं चोर लुंठक को एक वर्ड बनाऊं और भयम को दूसरा, देन इट बिकम पंचमी तत्पुरुष समास बिकॉज भयम गवर्न पंचमी विभक्ति. सो चोर लुंठकेभ्य भयम, तस्मात् पंचमी तत्पुरुष समास. सो बीइंग अफ्रेड ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स. नेक्स्ट धन धान्य पुष्प फलानि. So see, this is dhanam cha, dhanyani cha, pushpani cha, falani cha. It is iterator dvand samas because all the words are in prathama vibhakti. After each word there is cha. So if the cha particle is there, then it is iterator dvand samas. Next, prajahit daksha. This is also samas word.
प्रजा हिते दक्षः, प्रजा हिते दक्ष, प्रजा के हित में दक्ष, एक्चुअली दक्ष गमन सप्तमी विभक्ति। देन कृषि कार्यम, कृषेः कार्यम, दिस षष्ठी तत्पुरुष समास। गृहीत्वा इस त्वांतव्य। सो दीज आर important words from this chapter. So I hope you understood. मैं एक साथ में आपको additional questions दूंगा and then exercise of this chapter. Now I'm going to start fourth paragraph. See, so, जैसे भूमि जो होती है ये इंस्ट्रक्शन देती है, तो यहाँ पे completely dialogues किसका है? भूमि का किंग के प्रति। अभी उसके बाद में किंग क्या करता है, राजा क्या करता है? इट इज सेड हियर, भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्या नदीनां मार्गम् अवरुध्य कृषिकार्यार्थं जलस्य उपयोगम् अकरोत्। वृष्टिजलसञ्चयं कृत्वा जलव्यवस्थापनम् अकरोत्। भूमिम् उर्वरतमां कर्तुं प्रायतत। तदनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्यबीजानि अवपन् सनैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविधप्रकारकाणां बीजानां सङ्कलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। अनन्तरं बीजानां संस्करणं कृत्वा वपनम् अकरोत्। पर्जन्यानन्तरं बीजेभ्यः अङ्कुराः उद्भूताः। धान्यलाभेन सर्वे प्रजाजनाः सन्तुष्टाः च अभवन्। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणीः जनसेवाव्रती च अभवत्। So this is the reading of last paragraph, fourth paragraph. Now see explanation of this. भूमातु, it is भूमातृ शब्द। सो षष्ठी एक वचन इस भूमातु, पितु की तरह इसका भी फॉर्म होता है या मातृ की तरह इसका भी फॉर्म होता है, तो मातु, सिमिलरली भूमातु। ऑफ मदर अर्थ उपदेशम, उपदेशम मीन्स इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। मनसी निधाय, मनसी इज सप्तमी एक वचन फॉर्म, मनस सकारांत वर्ड, सो सप्तमी एक वचन। सो मनसी मीन्स इन माइंड, निधाय कीपिंग इन माइंड, निधाय इज लेवंत अव्यय। पृथुवैन्या नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य, किंग पृथु नदीनां मीन्स ऑफ रिवर्स, मतलब एक रिवर का नहीं, सारे नदियों का। सो नदीनां मीन्स ऑफ रिवर्स, मार्गम, मार्गम मीन्स फ्लो और करेंट, और यू कैन से उनका जो वे था मार्गम। अवरुद्ध्य ब्लॉकिंग, बैरिकेडिंग और ब्लॉकिंग, स्टॉपिंग। अवरुद्ध्य त्वांतव्य। कृषि कार्यार्थम, कृषि कार्यार्थम इज फॉर एग्रीकल्चर, जलस्य उपयोगम अकरोत्। जलस्य मीन्स ऑफ वाटर, उपयोगम अकरोत्, यूज द वाटर फॉर इरिगेशन। कृषि कार्यार्थम इज फॉर एग्रीकल्चर, जलस्य मीन्स ऑफ वाटर, उपयोगम इज यूज, अकरोत् did. Now see its meaning. Having kept the instruction or advice of Mother Earth in mind, blocking the flow of rivers, नदीना मार्गम अवरुद्ध्य, blocking the flow of rivers, कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। He used that water for irrigation, मतलब नदी का रास्ता रोक दिया और उस वाटर को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए। वृष्टि जल संचयम कृत्वा में स्टोरिंग और डूइंग वाटर हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको जमा करके जल व्यवस्थापनम अकरोत्। ही डिड वाटर मैनेजमेंट, मतलब बाकी काम जो था पानी की व्यवस्था, मतलब पानी सूखा था उस टाइम में, तो बारिश में जो पानी होता था उसको कलेक्ट करके एक जगह पे उस पानी को बाकी कामों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम, भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम प्रायतः, ही ट्राई टू मोस्ट फर्टाइल द लैंड। भूमि means to the land, urvartamam means most fertile, kartum means to do, prayatata, he tried. So what is kartum? It is tumantavya. Tadanantaram, after that or later, tasmin kshetre, in that field, in that area, janaha dhanya vijani avapan, people
people sowed the seeds. After that, people sowed the seeds in that area. स नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकारकानां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्. स means he, means the king, राजा के लिए प्रोनाउन आया. नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः, from many trees, different trees. विविध प्रकार का नाम means of different types. विविध प्रकार का नाम means of different types, various types. बीजानाम means of seeds. संकलनम means collection, and चयनम means selection. च परिश्रमेण अकरोत्. परिश्रमेण means efforts he did. So after that, मतलब उन्होंने क्या किया? After that he tried to most fertile the land. After that he sowed the seeds in that area. The people sowed the seed in that field. So Nekebhya means after that, means later, he means the king collected and selected the seeds with efforts from different trees. After that, what happened? So this last action is said here. Akarot. Anantaram. Anantaram is later. Vijanam sanskaranam. Vijanam is of seeds. Sanskaranam means processed. Processed means जो पहले था पूरा कलेक्ट कर लिया था, उसमें से कौन से सीड्स यूज होने वाले थे, तो प्रोसेस्ड द सीड. आफ्टर डूइंग प्रोसेसिंग द सीड्स, वपनम अकरो, ही सोन. तो लेटर प्रोसेस द सीड, ही सोन. सो यहाँ पे आप देखो, अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरो. अनंतरम इज लेटर, बीजानाम इज ऑफ सीड्स, संस्करणम इज प्रोसेस्ड, कृत्वा इज त्वांतव्य, वपनम मीन्स sown akarot. It is helping verb. Then parjanyanantaram. Parjanyanantaram means after rainfall, means बारिश के बाद में. Parjanyanantaram, after rainfall, बीजेभ्य from the seeds, अंकुराः उद्भूताः. Ankura means sprouts or shoots appeared. After rain, the seeds put out shoots. After rainfall, the seeds put out shoots, means the shoots germinated. Dhanya labhena means by getting. Dhanya means crops. Sarve prajajanaha. Sarve means all or entire. Prajajanaha subjects. Santushtaha cha abhavat. Santushta means pleased, contented or satisfied. Abhavan, became. So gaining the crops, the entire subject were happy or pleased. Esha kalyanakari nupa. Esha means this. Kalyanakari means welfare. Nupa means king. Prithubhyam, on the earth. Prashasane means ruling. Prashasane means in ruling. सब में एक वचन. Agranihi means was leading. And Jansevavrati. Jansevavrati means serving the people. व्रत कहते हैं वाव को, प्रॉमिस को. सो वाव ऑफ सर्विंग द पीपल. च भवत, सो बिकेम. सो एशा, दिस वेलफेयर किंग, was leading on the earth in the kings, as well as he was following the vow of serving the people. So this is the meaning of this last paragraph. Now see the important words here. I almost said you. Once again I am repeating. निधाय इज लेवंतव्य, बिकॉज य है यहाँ पे और नी प्रीफिक्स है. अवरुद्ध अब प्रीफिक्स है और इसीलिए ये भी लेवंतव्य है. कृत्वा त्वांतव्य है. कर्तुम तुमंतव्य है. देन आफ्टर दैट समास, कुछ समास वर्ड्स है यहाँ पे आप देख सकते हो. अगर वंस अगेन कृत्वा इज त्वांतव्य अव्यय. पर्जन्यानंतरम इज पर्जन्यस्य अनंतरम. पर्जन्यात अनंतरम इज पंचमी तत्पुरुष समास. एंड लेटर कल्याणकारी जन सेवा व्रति. ये सब समास वर्ड है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड you will be able to answer any questions directly asked from these paragraphs. So I suggest you please watch last video related to this chapter where I give you extra questions and also I discuss about the exercise given in this chapter.
Thank you.